बताती है। Hello everyone, and today we are going to discuss some polity issue and some polity related issues. Okay, so see, basic structure doctrine that was by the Keshavanand Bharti case, and it was in 1973. So constitutional amendment is not law under the Article 13, but the parliament can amend only part of including the fundamental right. Okay, so A.K. Gopalan case, that was in 1950. After then Shankari Prasad case, that was 1951, and in this case Article 368 did not confer amending power of parliament. Okay, and fundamental rights amendment किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है. Constitution amendment is not law under the Article 13, but Section 2 curtailed right to property with due compensation. Section 3 is precedence of the DPSP over fundamental right, took away the scope of judicial review, that was Article B and C. Sajjan Singh case, that was 1965, and Gopalan case, that was 1960. Now 1973 में आया था हमारा गोपाला केशवानंद भारती केस. ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक स्ट्रक्चर इज सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योर द सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म, unity, integrity, harmony between the fundamental right and DPSP. This is the basic structure. Okay, and fundamental right of the citizens are limited by can be amend the part of the constitution. Now there is a Golaknath case, that was in 1967. Power to amend the constitution under 368 was not unlimited. The fundamental right guaranteed under the constitution could not be abrogated, and it is talking about fundamental right cannot be abrogated. So fundamental right can't be abrogated, and other judgments are the 25 and 29 constitutional amendment. So 25 amendment है, 29 amendment है. ठीक है. Power of judicial review is asserted that the preamble of the parliament and hence amendable. So preamble is amendable. It is talking about the preamble that is amendable, but कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कांट बी अमेंडेबल, दैट शुड बी ऑलवेज मेंटेन एज व्हाट इट इज़. ओके, एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर आई डिस्कस बिफोर. नेक्स्ट वन इज the basic structure anyways is a constitution of India that check the power of parliament to amend the constitution, ensure that the constitution remain a living document. So constitutional should always be remain a living document, and laid down the several principles have become the bedrock for the constitutional law, that is separation of power, independent judiciary and rule of law. Okay, so हमें क्या करना है? We should ensure the federal structure of the constitution and judiciary approach, shape the judiciary as a constitutional interpretation. So judiciary क्या करती है? constitution का interpretation करती है. We want to shape that. Okay, now next question है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर. डिस्ट्रिक्ट की जो जुडिशरी है, ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं. यहाँ पे सिविल साइड से सबऑर्डिनेट जज कोर्ट्स हैं एंड मुंसिफ कोर्ट्स हैं. नाउ क्रिमिनल साइड्स में कौन होते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है. ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल इंडिया जज एसोसिएशन versus Union of India case, that is district judiciary independence is a part of the basic structure. तो जो डिस्ट्रिक्ट की जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो इंटीग्रेशन इन द पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस, and separation of powers from staff, legislation and the executive. So separation of powers is provided here with unified judiciary. Unified क्या होनी चाहिए? हमारे judiciary. Okay, so district judge is the highest judicial authority in the district. जो district judge होता है, he is the highest judicial authority. Organization, structure and jurisdiction nomenclatures are laid down by the state. They differ slightly, and now there is the appointment, posting, promotion of the district judges are made by the governor. और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स या फिर प्रमोशन वगैरह जो भी कुछ होता है वो गवर्नर करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की
एडवाइस के बाद। तो डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल कोर्ट है दैट इज़ अ सबऑर्डिनेट होंगे, फिर मुंसिफ होता है इसमें, एंड जो क्रिमिनल कोर्ट है दैट इज़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 70। सो abrogation of the article 70. Okay, so abrogation means a constitutional bench of the Supreme Court recently upheld the validity of the Union government decision to repeal the special status of Jammu Kashmir. So we given the special status to Jammu Kashmir and it want that it should be repealed. It should be repealed. So under the article 370 on the August, the President of India promulgated the constitutional application of Jammu Kashmir, which state that provision of the Indian Constitution are applicable in the state. Okay, and Parliament also inserted the Jammu Kashmir Act that was in 2019, and it was the Jammu and Kashmir Act. Okay, so which bifurcated the state into 2 UTs. तो यहाँ पे 2 UTs हो जाएंगी, इसको बाइफरकेट कर दिया गया है एज ए स्टेट इंटू 2 UT। द पिटिशनर हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्शन ऑफ द यूनियन। अब जिसने पिटिशन की है ही चैलेंज की, मतलब ऐसा क्यों किया गया यूनियन के द्वारा। तो इट वाज ए जम्मू कश्मीर एक्ट दैट वाज 2019, और अभी जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है, इसके तहत इसकी 2 UTs में इसको स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया है। So now next one is upholding the President proclamation that Jammu Kashmir did not retain any element of sovereignty after acceded to India in 1947, and Supreme Court held that 370 is temporarily transitional provision. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल 370 है इट इज़ टेम्पोररी, मतलब ये टेम्पोररी है, और साथ में ये क्या है, ट्रांजिशनल है। इट इज़ ट्रांजिशनल ओके, इट इज़ टेम्पोररी एंड द ट्रांजिशनल। सो इसलिए it held the UT can carved out of the state, form a new state by separation of territory from the state or by uniting 2 or more state। तो इसको लाया गया है, पार्लियामेंट ने लाया है कि या तो आपको यूनाइट करना है 2 और मोर स्टेट्स को बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर इसको यूनाइट करना है। ठीक है, सो एक्सपेंशन ऑफ द आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 3, द वर्ड स्टेट इज़ यूज्ड एज ए आर्टिकल 3A। स्टेट को यूज़ में लिया गया, इंक्लूड से यूनियन टेरिटरी, और इसको यूटी में ऐड किया गया। ठीक है, नाउ बोमई केस जो है, बोमई केस ने बोला है इसको आर्टिकल 3 के तहत ही यूटीज़ में बाइफरकेट किया गया है। ओके, तो बोमई केस बोलता है कि एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ए स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। तो इसकी एक जुडिशियल स्क्रूटनी करवानी होगी। तो अब क्या क्या मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो किया गया था, सो देयर इज़ ए इंस्ट्रूमेंट of accession. Okay, this instrument of accession was in the 1947. Maharaja Hari Singh was a ruler and we agreed to the accede his state of dominion status. तो उसने बोला था कि जम्मू कश्मीर को एज ए डोमिनियन स्टेटस मिल जाना चाहिए। ओके, नाउ टेम्प्रेरी प्रोविजंस दिए गए कि आर्टिकल 370 वॉज प्लेस्ड इन पार्ट 21 टाइटल टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन दे दिया गया इसको। ओके, सो दैट वाज पार्ट 21। नाउ आर्टिकल 370 वाज एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो आर्टिकल जो 370 है, इसमें एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन पार्लियामेंट नीडेड टू स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल ऑफ द लॉ। अब पार्लियामेंट को क्या चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब देखिए यहाँ का जो मैटर है जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये सारे मैटर्स कौन देखता है, दीज ऑल मैटर्स आर सीन बाय द सेंटर, एंड जो अदर मैटर्स हैं वो सारे मैटर्स कौन देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेम दिस कैन गिव पावर टू द जम्मू कश्मीर असेंबली। तो आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर को पावर दी गई है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 3 वॉज फॉर्म न्यू स्टेट, अल्टर द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, शैल बी इंट्रोड्यूस इन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही अप्लाई किया जाएगा। अफेक्ट द एरिया बाउंड्रीज एंड स्टेट, सो इट मस्ट रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेशन। बिल किसको दे दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेशन को दे दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मतलब जब भी कोई बाउंड्रीज़ में चेंज करना होता है या फिर
अफेक्ट करना होता है कोई एरिया तो वो बिल स्टेट गवर्नमेंट देखता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये रेफ़र करता है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। Okay, so this is the recently National Capital Territory of Delhi, that was 2023. National Capital of the Civil Service Authority, National Capital Civil Service Authority and statutory authority to make the recommendation to the Lieutenant Governor regarding the transfer, posting, vigilance and incidental matter. चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली ऐसे चेयरपर्सन है इसका, जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। ठीक है, तो इसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। सो दिस इज़ ए सिविल सर्विस अथॉरिटी फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, एंड इसमें सीएम जो होता है वो चेयरपर्सन होता है। ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर, तो होम सेक्रेटरी जो होता है वो इसका मेंबर होता है। एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली दैट इज़ मेंबर, चीफ सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होता है। इसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, सिविल सर्विस अथॉरिटी टू मेक द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली में कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। शैल बी डिसाइडेड मैटर बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट लोग होंगे और कुछ वोटिंग होगी। ठीक है, और देयर इज ए पावर एलजी मैटर, देयर आर एलजी में एक्ट सोलेली फॉर द डिस्क्रिशंस एंड matters when required by law to act in the discretion or exercise any judicial or quasi-judicial function. So primary LG expand the discretionary role of the LG, giving the power to approve the recommendations of the now LG is the decision will be final. तो LG का decision क्या होगा? That will be the final and case of the differences of the opinion between the him and the authority. डिस्पोजल ऑफ द मैटर, सो डिस्पोजल अगर करने होंगे मैटर्स, सो हमें क्या क्या चाहिए दिल्ली में? सो दिल्ली में पहला होना चाहिए पीस, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। ओके, पीस, ट्रैंक्विलिटी, रिलेशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, समन करना, प्रोरोग करना या फिर डिसॉल्व करना लेजिस्लेटिव असेंबली को, या कोई भी मैटर जो एलजी को दिया गया है सोल डिस्क्रिशन का। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द मैटर बाय द मिनिस्टर्स। सो सीएम एंड द चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो कुछ इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी कि 69th अमेंडमेंट है, 69th अमेंडमेंट। ठीक है, दैट इज़ इन 19 and 91। इसके तहत दिल्ली को एज ए यूटी का दर्जा मिला था 19 and 91 में। ठीक है, फिर 2021 में एक अमेंडमेंट आया था न्यू दिल्ली के लिए, अमेंडमेंट एक्ट 2021। इससे पहले दिल्ली को 1951 में पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला था। फिर 1952 में इसको क्रिएट किया गया, एज ए सीएम क्रिएट किया गया, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाज क्रिएटेड विद इलेक्टेड सीएम, मतलब 1952 में इसका इलेक्टेड सीएम होता था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसको यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो 1956 में ये यूटी का दर्जा मिला। और 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी दैट वाज इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इसको यूटी का दर्जा मिल गया। एंड अंडर द आर्टिकल 239 यूटी का दर्जा किस में मिला? 239 में। डायरेक्टली गवर्न बाय द प्रेसिडेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको प्रेसिडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न करता है। स्पेशल स्टेटस बालाकृष्णन कमेटी ने दिया था। ठीक है, नेम वाज द बालाकृष्णन कमेटी, बालाकृष्णन कमेटी। और स्पेशल स्टेटस कैसे मिला इसको? तो कमेटी का नाम है बालाकृष्णन कमेटी, बालाकृष्णन कमेटी। एंड 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 और आर्टिकल 239 और ए। ठीक है, इसके तहत इसको स्पेशल स्टेटस मिल गया। एंड लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इनसे रिलेटेड मैटर पर डिसीजन नहीं ले सकते, अदरवाइज इट कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। ओके, so Delhi legislature legislate over subject of the state list, concurrent list except the police and public order and land. Parliament can legislate over all the matters. And government of national capital of the Delhi Act that was lay down the framework for the Delhi Assembly in the Delhi government. Okay,
Now next one is the preventive detention. Preventive detention. Okay, what is preventive detention? So this settling the detention order of the preventive law are colonial legacy and they must be used only in the rarest of rare case. तो preventive detention जो है ये rarest of rarest case में ही यूज़ में लेना चाहिए, अदरवाइज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही इसको यूज़ में लेना चाहिए. अदरवाइज ऑब्जर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन लो आर कॉलोनियल लीगेसी, और ये क्या है, एक कॉलोनियल लीगेसी वाला एक्ट है. ठीक है. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट. आप में मतलब कोई ट्रायल नहीं किया पर्सन का और कोई भी कन्विक्शन ही नहीं किया, ऑन ए मर रिजनेबल अप्रिसिएशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर. तो दिस इज़ द डेंजरस टू द पब्लिक ऑर्डर. ठीक है, क्योंकि विदाउट ट्रायल आपने कुछ भी किया है. सो टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ नियर फ्यूचर. So protection against the arrest and detention under Article 22(1) are not available to the person under preventive detention law, that is 22 and 3. Parliament has the exclusive authority to make a law for prevention detention for reasons connected with the defense, foreign affairs and security of India. तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है. It can make law for the defense, foreign affairs and the security of the India, and it should be take in a rarest and rare case, and this comes under the Article 22 and 1. Okay, now next one is both Parliament and the state concurrently make a law for connected with the security of the state, maintenance of the public order and the supply and services. So there is a साइकोट्रोपिक, एक जैसे कोई कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC. ठीक है. नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट परमिट्स द प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला आर्टिकल 22, कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड अरेस्ट नॉर शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट टू द डिफेंडेड लीगल प्रैक्टिशनर्स. इसमें आपको लीगल प्रैक्टिशनर से क्या आंसर पूछना होगा. आर्टिकल 22, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स में उसको प्रोड्यूस करना होगा. ठीक है. कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने. अबाउट टू क्लोज विल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हु इज डिटेन in accordance to the law providing for the preventive detention. ठीक है. Now next is the no person can be detained for more than one period of 3 months. 3 मंथ से ज़्यादा तक इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते. एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म डेट देयर इज ए सफिशिएंट कॉज फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ सच डिटेंशन. एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, वो देखेगा कि हाँ कोई मतलब सफिशिएंट कॉज है कि आप किसी को डिटेन कर रहे हो. ठीक है. आफ्टर देन पर्सन कैन बी प्रिवेंटिव डिटेन्ड और मोर देन 3 मंथ विदाउट ओपिनियन ऑफ ए एडवाइजरी बोर्ड. तो 3 मंथ के अंतर्गत उसको डिटेन कर दिया जाएगा. पार्लियामेंट बाय लॉ इसमें मैक्सिमम पीरियड सच इज द डिटेंशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्सन टू विच सच लॉ में बी अप्लाई. अब इसमें है एक गोपालन केस, दैट वाज द कोर्ट गेव ए ग्रीन फ्लैग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो गोपालन केस है. ठीक है. गोपालन केस 1950. नाउ है सिब्बल लाल केस. सिब्बल लाल केस दैट द कंट्रोल रूम इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू द इंक्वायर इनटू रियलिटी but which reference as a ground of detention. Now next is Shambhunath Shankar case. Court held sometime state must take such extreme steps for security of the country. ठीक है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कोर्ट क्यों यूज़ में लेती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी मेंटेन. एंड दैट वाज द शंभूनाथ केस एंड गोपालन केस दैट वाज इन द 1950. ठीक है. Now personality right. What is personality right? Delhi High Court is granted protection to a famous Bollywood actor for the personality right misused by third party. So personality right is referred to the right of person to protect his personality and the right to privacy and property. It includes the name, voice, signature, image, feature easily identified as a marker of the personality. तो इसमें आपका नेम हो गया, आपकी वॉइस हो गई, आपका सिग्नेचर हो गया, आपकी इमेज हो गई, इसको आप बनाए रखेंगे. पर्सनैलिटी राइट और देयर प्रोटेक्शन आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द स्टैट्यूट ऑफ द इंडिया, बट राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आया है. ठीक है. तो राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू कीप वंस इमेज लाइक फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड,
विदाउट परमिशन। एंड ट्रेडमार्क एक्ट वाज द कॉपीराइट एक्ट भी दिया गया है इसमें। राइट टू प्राइवेसी, दैट वाज राइट टू नॉट हैव वन पर्सन रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। एंड आर्टिकल 21, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज Puttaswamy case. So Puttaswamy case was in the Puttaswamy case, and that was in the 2011. And in emblem and the name of the improper act, that is protect the unauthorized use of the dignitaries' names and symbols. IPC's negative reference is the derogatory representations. So defamation भी हो सकता है, and that is under the Indian Penal Code. So उनके अगेंस्ट में defamation के चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। So personality rights are under the international convention. First is the Rome Convention 1961. Now there will be the TRIPS Convention, that was 1964, and WIPO is also there. Okay, WIPO is also there for performance of the photographs and the particularly digital environment. Okay, so this is the personality right, which is nowadays very important. It is Article 21, that is person shall be deprived of life and personal liberty. Article 300A, that is right to property. And 44 अमेंडमेंट के तहत जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज ए लीगल राइट का दर्जा दे दिया है। जुडिशियल, जैसे दीपा जय कुमार केस है, दिस केस मद्रास हैज़ ए पर्सनैलिटी राइट सीज टू एग्जिस्ट ऑफर द डेथ ऑफ द पर्सनैलिटी एंड द कैनॉट बी इनहेरिटेड लीगल हेयर। साक्षी मलिक, एक तो दीपा केस हो गया, ठीक है, दीपा केस। नेक्स्ट है साक्षी मलिक केस। Sakshi Malik case, that was the Bombay High Court held that using the another's image, most especially the private image, without consent is illegal. अगर आप किसी और की इमेज को यूज़ ले रहे हो, that is known as a illegal. Okay. Now next one है हमारे पास में hate speech. So hate speech क्या होता है? Hate speech. So this hate speech is about states the need of the stakeholder to find long-term solutions of the hate speech. Hate speech has not been defined in any law. This is not defined. This is not defined. But however, hate speech generally refer to the incitement to hatred primarily against a group of person. Hate speech can be conveyed through any form of the expression, including the image, cartoon, meme, or object, gestures, or the symbol. The Constitution provision of the hate speech is curtailed under the Article 19 and 2. And the ground of public order, incitement of the offense of security of the state. So the article section 196 of the penalty promoting enmity between the different group. So this is the section 196, that is कोई भी enmity है इसको religious, race या birth से related, that is included भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की है, जिसमें हेट स्पीच को 196 IPC में रखा गया है। एंड सेक्शन 299 भी है यहाँ पे, सेक्शन 299, एंड दैट इज़ डिफाइन द पनिशमेंट फॉर द डेलिबरेटली मालिशियस एक्ट, दैट इज़ द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास। आप अगर आपने किसी की रिलीजियस फीलिंग को मालिशियस कर दिया, मतलब अगर उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को आपने हर्ट किया है, तो उसके लिए सेक्शन 299 को भारतीय दंड संहिता में बनाया गया है। And Article 353, that was the penalty, the publication or circulation of any statement, rumors, reports and causing public mischief, enmity, hatred or ill will of the classes. और सेक्शन 353 में भी अगर आपने किसी के खिलाफ कोई पब्लिसिटी की है गलत तरीके से, उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 8 was the disqualify a person from the contesting a election. And section 123 and section 125 prohibit the promotion of enmities of the group of the religious. So यहाँ पे एक तो section 123, section 125 का ध्यान रखना है। section 7 penalty incitement to encouragement of the untouchability for a sign, visible representation, religious institution misuse, that was the section prohibit the religious institution for the managers. वो अगर कोई डिसहार्मनी कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर स्प्रेडिंग द हेटर्ड अमंग द रिलीजियस ग्रुप। सो दैट इज़ सेक्शन 3 and G। सेक्शन 7 इसके अंतर्गत पेनल्टीज़ लगाता है अगर आपने अनटचेबिलिटी के लिए कोई मतलब विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया है। प्रवासी भारतीय संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, जिसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हेट स्पीच का, तो इसको किस तरीके से लॉ कमीशन डील करेगा, दैट इज़ प्रवासी भारतीय संगठन। एंड नेक्स्ट इज श्रेया सिंगल केस इन 2015। एंड जो श्रेया सिंगल केस है, इसमें आर्टिकल 19 और 2 को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया गया। इनसाइड द वायलेंस, अगर कोई वायलेंस है तो उसको दूर किया जाएगा।
फिर अमीश देवगन यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज द नीड टू बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्री स्पीच एंड हेटेड इन द कम्युनल डिसहार्मनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है पैलेस ऑफ द वर्शिप एक्ट। सो दिस पैलेस ऑफ द वर्शिप एक्ट वाज इन द 1991 and the religious character of a place of the worship be the same in what is in 15 August 1947. No person shall be convert any place of the worship of religious denomination. It also imposes a positive obligation to maintain religious character and all suit appeal of any other proceedings placed before the August 15 and 47. So the disputed site was Ayodhya case. Ayodhya exempted from act, and monuments and site covered under the Ancient Monument Archaeological Sites Remains Act, that was Arsar Act 1958. 1958 में कहा गया है कि जितने भी प्लेसेस है जहाँ पे वर्शिप होती है उनका सेफ गार्ड किया जाएगा, एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. एंड यहाँ पर एक और है कि कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे तो पेनल्टी लगाई जाएगी. इन सेक्शन 6 ऑफ द प्रेस्क्राइब ए पनिशमेंट ऑफ द मैक्सिमम 3 ईयर. तो मैक्सिमम 3 ईयर्स का क्या होगा, पनिशमेंट होगा. ठीक है. Now next one is about the 8th schedule of the constitution. So 8th schedule of the constitution जो है इसमें इंक्लूजन किया गया है कुई लैंग्वेज को. किसको? कुई लैंग्वेज को. तो ध्यान रखना, एक नई लैंग्वेज है कुई लैंग्वेज. सो इट एनलिस्टेड द 22 लैंग्वेजेस ऑफ द करंटली 14 लैंग्वेजेस जो कि ओरिजिनली थी. सिंधी को 21 अमेंडमेंट और 1967 से, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71 अमेंडमेंट 1992, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92 अमेंडमेंट. ठीक है. सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डेवलप्ड रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम द साहित्य अकादमी एंड द वाइडर ट्रांसलेशन कैन बी यूज असेंबली एंड द पार्लियामेंट्री डिबेट्स कैन बी यूज ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड RBI टू इंक्लूड इन द करेंसी नोट डिनोमिनेशन. तो 8th शेड्यूल की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप कोई गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई साहित्य अकादमी में भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, पार्लियामेंट की डिबेट्स में यूज़ में ले सकते हैं, और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ में ले सकते हैं, और RBI भी खुद की करेंसी में इसको छाप सकता है. रिसेंटली कोई लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था इन द 8th शेड्यूल. नेक्स्ट इज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट वॉज अंडर द आर्टिकल 31 and B. Okay, so 9th schedule was first constitutional amendment, article 31 and B. Central and the state law included in 9th schedule cannot be challenged in court. Violation of the fundamental right. ठीक है. 9th schedule will not be challenged for the violation of the fundamental right. तो कभी भी it will never be challenged. So Supreme Court in the Kolho state of Tamil Nadu that was ruled the law added to the 9th schedule and violating of the fundamental right can be challenged. So it undermined the basic structure that was under 21, 14 and 19. Okay, so अगर इसको आपने undermine किया तो this will be serious conditions, and in that condition article 21, 14 and 19 will be undermine the basic structure also. So that's why 9th schedule comes under the first constitutional amendment and article 31B. एंड कोहिलो केस में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू साइलेंस. ये जो राइट टू साइलेंस है दैट इज एमिनेट्स इन आर्टिकल 20 and 3. ओके, 20 and 3 में विच स्टेट दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. मतलब खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं दे पाएगा. दैट इज कम्स अंडर द राइट टू साइलेंस. प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड राइट is not available to the person being interrogated under the 1962 Foreign Exchange Amendment Act was also given. and Nandini Satpathy case, that was Dani case, इसमें पुलिस स्टेशन में रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 के तहत वायलेशन का केस डाला जा सकता है, एंड दैट इज़ द राइट टू साइलेंस. इट इज़ कम्स अंडर द आर्टिकल 23 and 20 and 3. रिजर्वेशन फॉर द लोकल इन प्राइवेट सेक्टर. तो हरियाणा एंड पंजाब जो कोर्ट्स हैं इन्होंने लोकल्स के लिए भी रिजर्वेशन की बात की है. दैट इज़ 75% टू द लोकल इन प्राइवेट सेक्टर. सो 75% रिजर्वेशन का पंजाब इन पंजाब एंड हरियाणा 75% people of the Punjab and Haryana local people will give the reservation, and High Court declared it unconstitutional and violation of Part 3 of fundamental right. So High Court is saying that no, it is not a constitutional, it is unconstitutional. That's why it also said that the act violates the constitutional morality, and it's actually
beating the morality of the constitution. So that's why it said state cannot discriminate against the individual on account of the fact that they do not belong to the certain state of the negative discrimination. So Andhra Pradesh have also enacted the similar act. So these all actually against the constitutional morality. That's why, and this is not, क्योंकि यहाँ पर they are giving the salary of 30,000 at least to the locals, and 75% if they are reserving for the locals, that means they are doing injustice to the other candidates. The specialist candidates are not getting the benefits of that, means the loyal candidate or who is really deserving, they are not getting the benefits. Okay, now next one is affirmative action. Affirmative action means positive action or which is introduced US to counter the historical pattern of prejudice against the individual. So this is black and Hispanic minority students के against में. This is the affirmative action that you should not allow to do any discrimination against other candidates. So reservation is a system of affirmative action. So they will provide the reservation in education, employment, government schemes and scholarship and politics. So the article 15 and 4 and 16 and 4 are government to provide the reservation, and that is the affirmative action. As a Indira Sani case, in that 50% reservation is given. Next is Ranganath Mishra Commission. So this Ranganath Mishra Commission is National Commission for Religious and Linguistic Minority. Okay, and look into the various issues related to linguistic and the minority. So this is the Ranganath Mishra Commission. Ranganath Mishra Commission, and this is permitting the Dalit who converted in Islam and Christianity to the scheduled caste. Next is Article 355, that is part of the emergency provision. So that is part 18 of the Constitution, and part 18 is concluded the Article 352 to 360, and that is union to protect every state against the external aggression, internal disturbance, and government of every state is carried on according to the provision of the Constitution. Next is right to work. So Punjab government that provided the right to work mandatory for all the road owning agencies including the Nahai. Okay, Nahai को भी दिया गया है, and that is provided the footpaths and cycle track on the road. So there will be the footpaths and cycle track will also be there. Okay, on the roads, and that is called actually the right to work.